जनता ये जानती है कि आदरणीय शरद पवार साहब का नाम ले तो मुफ्त में पब्लिसिटी मिलती है। और अमित शाह जी महाराष्ट्र में आकर क्या बात करेंगे, उनकी पार्टी ने क्या किया है, तो लोग तो सुनेंगे नहीं। लेकिन आदरणीय शरद पवार साहब का नाम लेंगे तो लोग सुनने लगेंगे, इसलिए वो नाम लेते हैं। वो हिसाब मांग रहे हैं। पहले तो देश की जनता को 10 साल में उन्होंने क्या किया भाजपा ने, उसका हिसाब दे दीजिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों को तकलीफें हो रही है, वो सब का हिसाब दीजिए। और अगर 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं तो फिर भाजपा ने हिसाब दीजिए ना, 5 साल में उन्होंने क्या किया। मैं बताता हूं उन्होंने क्या किया। 5 साल में अमित शाह जी को पता लगना चाहिए, शायद वो छुपाना चाहते हैं, लेकिन 5 साल में भाजपा ने सिर्फ घर तोड़ा है, पार्टी तोड़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या किया 5 साल में भाजपा ने, जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको अपने पार्टी में लिया है, वॉशिंग मशीन में धाकर उनके पाउडर डालकर साफ करके उन्होंने अपने पार्टी में लिया है। तो 5 साल में तो भाजपा ने वही काम किया है। तो ये सब छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर नजर डाल रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी को ये समझना पड़ेगा कि ये सब चीज करके, ये सब बातें करके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता ये जानती है कि आदरणीय शरद पवार साहब ने इतना अच्छा काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए काम किया। और महाराष्ट्र की जनता वो तो उनको प्यार और सम्मान देती है। तो ये सब अगर यहाँ वहाँ की बात करके कुछ फायदा नहीं होगा। अपने गिरेबान में पहले वो झाके, और जो भ्रष्टाचारियों को लेकर जो परिवार बना रहे हैं ना, भ्रष्टाचारियों का परिवार, वो परिवार पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों को पता है कि आप भ्रष्ट हैं। Glad your same reaction on English, the way the statement is given by the Amit Shah on regarding against Sharad Pawar. What Sharad Pawar had done, because he is asking a question कि महाराष्ट्र की जनता 50 साल से शरद पवार को ढो रही है. The way the Amit Shah given this, what's your reaction on it? See, we don't owe an explanation or any kind of explanation to Mr. Amit Shah. Him questioning what Honorable Sharad Pawar Sahab has done for the people of Maharashtra, we don't owe an explanation. Point here is the people of Maharashtra, people of India know in the 50 years of service to the people what Honorable Sharad Pawar Sahab has done. But I can only say that Amit Shah ji, like other leaders from BJP, to gain free publicity, he takes the name of Mr. Sharad Pawar. Everybody knows that if you want free publicity, you just mention the name of Mr. Sharad Pawar and people start listening to you. Because BJP and Amit Shah ji have nothing to show as work. He's talking about, tell us what you've done in all these years. Tell the country what you've done in the last 10 years. Unemployment, price rise, inflation, people are in trouble. Explain those things to people. And let me tell you what BJP has done in the last 5 years. He's asking us what we've done in the last 5 years. I will tell you what BJP has done in the last 5 years. They've broken families, they've broken parties, and more importantly, all the people they accused of corruption, they've taken those people in their party. They've taken the corrupt people in their party, put them in their washing machine, used their washing powder and cleaned them up. This is all they've done. So they are talking about Modi ka parivar. It's like bhrasht logon ka parivar that they have. They are making a parivar out of bhrasht people. So I think Amit Shah ji, before questioning others, should question himself. He should look in the mirror, and his party also should look in the mirror and ask what they have done for the people of this country. Because everybody knows that Honorable Pawar Sahab, in the 50 years of his political career, 55 years to be precise, he has only served the people of Maharashtra and India, and the people are happy with him. So people who indulge in cleaning people of corruption and taking them in their party, and don't give a proper governance to the people, should not ask these questions. सर, दूसरा सवाल जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री लोग एक शख्स को चंद्रयान भेजने की बात करें, वहीं सोनिया गांधी लगातार 19 बार राहुल गांधी को सक्सेस करने में सफल, 20वीं बार उनको लॉन्च करने की कोशिश जारी है. राहुल गांधी को लेकर लगातार हमला करते राहुल गांधी. The point here is BJP and Mr. Amit Shah, they have nothing to talk about what they are doing. Therefore, they are always talking about other people. ठीक है, वो दूसरे लोगों की बात करते हैं, दूसरे लोग क्या करते नहीं करते उसकी बात करते हैं. पर मुद्दा ऐसा है कि बोलते ना, परिवारवाद, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो तो भाजपा में ही पल रहा है ना, वहीं पनप रहा है. आप देखिए, कहीं पर भी जाइए, भाजपा के लोग जो है उनके बोलते ना, किसी का बेटा, किसी की बेटी, ये सब राजकारण में है. तो अगर आप परिवारवाद की बात करें तो उनको मत दीजिए टिकट. अभी कल की गोवा की बात है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी है, उनकी मिसेस को टिकट दे रहे हैं साउथ गोवा का.
तो क्या ये परिवारवाद नहीं हुआ? आप दूसरे की लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं तो आप अपने लोगों की लॉन्चिंग कर रहे हैं, अपने बेटों को लॉन्च कर रहे हैं, अपनी बेटियों को लॉन्च कर रहे हैं। तो भाजपा को हक नहीं बनता ये सब चीज़ें की बात करने का, क्योंकि अगर वो दूसरे के बारे में बात करे तो अपने गिरवा में भी झाके और वो जो कर रहे हैं वो बंद करें। क्लैट से एक और सवाल जानना चाहिए, जिस प्रकार से बीजेपी अलायंस जो है नेशनल देखिए, वहीं आप लोग की पार्टी के तीन अलायंस शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, क्या अब तक रणनीति कब तक फैसला आ जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, कब तक, क्योंकि लोग काफी इंतजार कर रहे हैं। चुनाव घोषित तो नहीं हुए, अभी चुनाव आयोग जब हमें तारीख देगा तब चुनाव होंगे, तब तैयारी होगी। लेकिन उसके पहले इतनी घाईबाजी क्यों है? अगर लोगों को अच्छे उम्मीदवार देना है तो थोड़ा बहुत तो होमवर्क तो करना पड़ेगा, और लोगों की सेवा करनी है हमें कोई किसी को बताना है कि भाई हम पावरफुल है, वो पावरफुल है। क्या बोलते हो, जो अजीत दादा पवार, शिंदे गढ़, महायुति जो है, उनमें तो झगड़ा चल रहा है ना। आप उन्हें सवाल करिए, वो खुद एक दूसरे के साथ भिड़े हुए हैं। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, हमारी तैयारी चालू है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी तरह से अच्छे उम्मीदवार हम चुनकर लोगों के पास जाएंगे। उन्हें तकलीफ है, उनके आपस में बहुत झगड़ा। कल मैंने सुना, कल शाम को अमित शाह जी आए थे सह्याद्री में, वहाँ पर भी लोग जो है नाराज होकर उठ कर चले गए, क्योंकि उन्हें जितनी सीट चाहिए थी वो नहीं मिल रहे। तो दबाव, प्रेशर उन्होंने है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो अच्छे उम्मीदवार देंगे जो महाराष्ट्र और देश की सेवा करें। कब तक? लेकिन क्योंकि हालांकि दिल्ली दिन प्रतिदिन आप लोग की बैठक भी हो रही है, नहीं तो इतनी जल्दी क्या है? आज डिक्लेयर करने के बाद तो कल चुनाव है क्या? नहीं है ना। तो आज डिक्लेयर करो या चुनाव आयोग जो डिक्लेयर करेंगे उस समय करो। उम्मीदवार देकर लोग अपना काम कर रहे हैं, और जो लोग जिनको पता है वो उम्मीदवारी मिलने वाली, वो अपना काम कर ही रहे हैं ना, तो करने दीजिए। सर, कल उद्धव ठाकरे और संजय राउत मिलने आए थे शरद से, क्या कुछ चर्चा हुई? क्या कुछ इसको रणनीति को लेकर चर्चा हुई, सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, ये आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है। जो भी चर्चा है वो अपना कर रहे हैं। हर चीज बताकर फायदा नहीं होता। आपके भी उसमें कोई डिस्कशन होता है तो हर चीज बाहर बता के मतलब नहीं है। रणनीति होते है, चुनाव के समय जो करना है वो हर चीज जो है धीरे धीरे, जब वक्त आएगा, समय आएगा, आपको पता चलेगा। 48 में से कितनी सीटें महाविकास आघाड़ी ले पाएगी सर? देखिए, आप गोल गोल घूमकर मुझे सवाल कर रहे हैं, ठीक है। जो निर्णय होगा वो निर्णय वहां पर वो लेकर जब समय आएगा आपको पता चलेगा। कितनी सीटें जीत पाएगी, वो मेरा सवाल है। जब जीतने का बात आएगा या जो आप, मैं वो ही बोल रहा हूँ, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ आपके सवाल को, लेकिन जब समय आएगा सब आपको पता चलेगा। कौन सी सीट किसको मिलेंगी, कितनी पार्टियां सीट लेगी, कौन जीतेगा, कब जीतेगा, ये सब हम आगे पता है। दावा कर रहे हैं 48 में से 45 सीट महाराष्ट्र में जीत के लाएंगे, इसलिए हम ये सवाल। अमित शाह जी ने 48 में से 45 कहा, मैंने तो कहा, सोचता हूँ कम कहा। उन्होंने कहना चाहिए था कि भाजपा महाराष्ट्र की 48 सीट में से 60 सीटें जीतेगी, बोल देना चाहिए था ना। वो तो हमेशा बड़ी बड़ी बात ही करते हैं। तो दूसरी बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाजपा के लोगों ने महाराष्ट्र में 48 सीटें जो बोल रहे हैं ना, उसके बजाय 48 सीटों में से 60 सीटें जीतेंगे बता देना चाहिए, और देश में 1000 सीट जीत लेंगे, ऐसे बता देना चाहिए। इसमें क्या है? सर, एक और सवाल आना चाहिए। हालांकि हमने देखा था कैंपेन शुरू किया पीएम मोदी का परिवार, वो कहते पीएम मोदी कह रहे देश मेरा परिवार है। देखिए, क्या हो रहा है कि भाजपा के लोगों परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जबकि हम जो है ऑपोजिशन उन्हें आईना दिखा रहे हैं, उनको बता रहे कि उनके परिवारवाद उनमें पनप रहा है। तो वो छुपाने के लिए वो अभी नया बात कर रहे हैं कि भाई मोदी का परा। मैं भी चौकीदार पहले कहा था, कोई चौकीदारी हुई नहीं, देश में तकलीफें बढ़ गई। आज वो मोदी का परिवार कहते हैं और कहते हैं कि पूरा देश मोदी का परिवार है। देखिए, मैं भी ये देश का वासी हूँ, मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ, मैं मोदी के परिवार का नहीं हूँ, मैं इस देश का हूँ, मेरा भी एक परिवार है। तो ये सब चीज़ें गोल गोल घुमाकर वो जो गलत कर रहे हैं भाजपा, उससे लोगों को नज़र हटाने की बात है। ऐसा कुछ नहीं होना, लोग उन्हें बताएंगे कि कौन किसके परिवार के हैं। Same ratio in English. Modi has now BJP started a campaign. We can say PM Modi. He said all Indians are my family. See, point here is BJP kept accusing the opposition of dynastic politics, parivarwad. But the opposition showed them the mirror and showed them that BJP is the breeding ground for dynastic politics. Parivarwad exists in BJP. So now to cover that, to counter that, they come with something called Modi ka parivar. Okay? Point here is, you say everybody in this country, every citizen is Modi ka parivar. I can speak for myself. I am not from Modi ka parivar. I have my own parivar. So don't force things upon us. You are doing something wrong. Parivarwad is existing in your party. To cover that up, you are talking about others. People are very wise. People understand. And everybody knows. I'll tell you what, very simple. Mainly this has become a brusht logon ka parivar. All people who are brusht, corrupt,
Okay, they are being taken into the BJP and they are being cleaned and kept there. So more than anything, this is Bhrasht Parivar. Bhrasht ka Parivar is what Bhajpa is. That's what it is. Thank you, sir.